تھا تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے اس کی رپورٹنگ کہ جس کے ساتھ غلط لوگوں کو پنش نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جن لوگوں نے اس کے مرتکب ہوئے ہیں، جو لوگ اس لیپسز کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو پنشمنٹ دی جائے، کیونکہ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، اور اس میں ہم وہی جس طرح کہ ہم پی آئی اے کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہم پورے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ اس میں ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کے بارے میں ہم ایک پراپر طریقے سے کیس بنا رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے تو کورٹ میں جا کے تو کوئی اسٹے لے لے۔ تو وہ رپورٹ اور اس کا جو آپریشنل پارٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ کچھ ممبران یہ چاہتے تھے کہ اگلے ہفتے میں اس کا اعلان کیا جائے، تو وہ رپورٹ ہم جو ہے تو سبمٹ کریں گے ٹو دا کمیٹی آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن انشاءاللہ۔ آئی تھنک وی شوڈ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، خود بھی کام نہیں کرتے، مگر جو کام ان کو کرنا آتا ہے وہ بڑا اچھی طرح کرتے ہیں، وہ عوام کی خدمت نہیں ہے۔ 2017 اکتوبر میں گیا تھا کورٹ میں، نہ میں وزیر تھا نہ میں الیکٹڈ تھا، میں ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ تھا، اور میرے شہر میں قتل و غارت ہوئی تھی۔ تو میں جا کے کورٹ میں گیا، میں نے کہا جی یہ ٹی وی کے اوپر روز ہم چل دیکھتے ہیں کہ جی ایک پیج نکل گیا جے آئی ٹی کا، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کون کون انوالوڈ ہے، تو آپ مجھے زہر بلوچ کی بھی جے آئی ٹی دیجیے، رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت مجھے نثار مرائی کی بھی دیجیے، اور آپ بلدیہ فیکٹری کی بھی دیجیے، جل گئے 250 لوگ، کیونکہ ایک خاتون مجھے ملی آ کے، ان کے والد، ان کا بھائی، ان کا میاں، تینوں جل گئے، وہ آج تک بیچاری دھکے کھا رہی ہے۔ سو دیرفور یہ اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مقام کیا ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کے چیزیں ٹرانسپیرنٹ تو کلیئر تو کریں۔ تو جب 2.5 سال کے کورٹ میں جھگڑے کھانے کے بعد جب وہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، سندھ ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو کہہ دیا کہ آپ جے آئی ٹی ریلیز کریں، اس وقت انہوں نے کی نہیں، اور اب چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل کرتی، وہاں بھی لڑیں گے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کورٹ کا سر آنکھوں پہ۔ تو یہ بالکل یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا، یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، منطق اپنی کارکردگی جو پچھلی تھی، جو چوریاں تھیں، وہ چھپانے کے لیے وہ شفٹ کرتے ہیں بلیم۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے، جو روٹی کپڑا مکان عام عوام سے چھینا ہے، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ تھینک یو۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز، سید علی زیدی اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مشترکہ پریس کانفرنس ان کی جاری تھی اسلام آباد میں۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی، کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے پروگرام نیوز ایٹ 6 میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز ایٹ 6 میں ہوں آپ کا میزبان علی جنت۔
मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हम कौन से मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये आपको बताए देते हैं। आज ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया और उसके बाद इस बारे में हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कहा यह गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि मुल्क भर में जंगलात का जो रकबा है उसको 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। ये किस तरह से किया जाएगा, इसका किया जाना क्यों जरूरी था और अगर ऐसा हो जाता है तो इसके हमारे माहौल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आज के न्यूज शो में हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जी आज ये किस तरह से मुमकिन है कि हम मकबूजा कश्मीर की बात ना करें अपने न्यूज शो में, क्योंकि कल से आज तक हम देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। अल जजीरा हो, BBC हो, CNN हो, तमाम जगहों पर इस खबर को मरकजी जगह दी गई है, इस पर बात की गई है, क्योंकि सौपुर में कल ये एक वाकया पेश आया जहां एक नन्हे 3 साल के बच्चे के सामने उसके जो 70 साला नाना हैं उनको शहीद कर दिया गया और फिर उसके नाना की जो डेड बॉडी है, उनकी जो नाश थी, उसके ऊपर इस बच्चे को बिठा के पिक्चर्स ली गई और फिर उनको वायरल किया गया सोशल मीडिया पर। तो आज के इस इशू पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवाजें जारी रहेंगी, जो कि उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी खबर दी है मुसाफिरों के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी है, NCOC से वो ब्रीफिंग दे रहे थे और कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों में से 90% मेहनत कश अफराद हैं और उनकी वापसी के लिए खातिर-खा इंतजाम किए जा रहे हैं। और SOPs की उन्होंने बात की, अगर बैरून मुल्क सफर करना है तो उसके लिए आपने कौन कौन से SOPs को फॉलो करना है। वो आम बातें हैं जो कि हम रोजाना अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करते हैं। इस मुतालिक उन्होंने कहा कि एयरलाइंस की जो पॉलिसी है उस पर अमल करना होगा। और ये बात कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में कोरोना के मरीज यानी उन्होंने बैरून मुल्क सफर किया है, इस हवाले से इस खबर की उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है और कहा है कि गलत खबर है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोरोना की अलामत कोरोना की अलामत के हवाले से उन्होंने कहा कि कोरोना की अलामत की सूरत में आप सफर से गुरेज करें, इस पर वो बात कर रहे थे। इसके अलावा आज मसरूफ दिन रहा है मुआविन खुसूसी उस्मान डार का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है और टाइगर फोर्स की हम बात करेंगे, जो बहुत ही कलील वक्त में टाइगर फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद जो इनिशिएटिव लिया गया है, एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है, इस पर ब्रीफिंग दी गई है उस्मान डार साहब की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात की है, चेयरमैन NDMA से भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि अब जो हमारे ये नौजवान हैं टाइगर रिलीफ फोर्स के, ये दीगर सरगर्मियों के अंदर भी हमें आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शो का बाकायदा आगाज करते हैं और जी हमारे माहौल के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला, एक बहुत ही अहसन इक़दाम जिसका आज ऐलान किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। सबसे पहले मुफ्त बात कर लेते हैं, जंगलात का रकबा जो पाकिस्तान में सिर्फ बताया जाता है 13% है, इसको अब बढ़ाया जाएगा, 15% तक लेकर आया जाएगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर जी वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है तो ये फौरी तौर पर 13 से बढ़ेगा और 15% हो जाएगा। इसके लिए हम सबको बिल्कुल वक्त भी दरकार है, हम सबको अपना इनफरादी जो किरदार है वो भी अदा करना होगा। जब हम सुनामी ट्री मंसूबे की बात करते हैं, मिलियन ट्री मंसूबे की बात करते हैं, उसमें भी हमने देखा कि आवाम से भी अपील की गई थी और मुख्तलिफ जो हमारे रजाकार हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, इंतजामिया ने, हुकूमत ने, जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहां पर भी हमने देखा कि शजरकारी की गई थी। लेकिन हमें अपने अपने तौर पर भी मैं ये सवाल रखना चाहूंगी नाज़रीन आपके सामने जो हमें देख रहे हैं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई एक दरख्त कहीं पर लगाया हो। घर के बाहर थोड़े बहुत पौधे लगा लेना, गमलों के अंदर घर में पौधे लगाना, ये तो हमारे घरों में हो रहा होता है, लेकिन एक दरख्त लगाना जो किसी को छांव दे सके, किसी को फल दे सके, माहौल को बेहतर बना सके, ये हम में से कितने लोग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस बारे में PTV को आगाह भी कर सकते हैं, वीडियो अपनी बना सकते हैं, PTV से शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में हम दिखा भी सकें। लेकिन जी आज ये जो फैसला किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, इस पर हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है कि अभी होना किस तरह से है और इसके क्या क्या फवायद होने जा रहे हैं। हारून इलाही तूर ने की रिपोर्ट मुरतब की है, आपको दिखाते हैं। ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत शुरू किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। इकदाम के तहत शुमाली इलाका जात साहिली पट्टियों और मैदानी इलाकों में कुदरती हयात के लिए महफूज एरियाज का क़याम अमल में लाया जाएगा। मनसूबे के पहले मरहले में बराह रास्त मुलाजमतों के 5000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के खात्मे से जंगली हयात के मस्कन को नुकसान पहुंचा और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती इकदाम से नेशनल पार्क को महफूज बनाया जाएगा। जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन बनाने जाते थे, अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं,
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے. تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. مجھے خوشی ہے کہ سارے صوبوں کے اندر پارکس بن رہی ہیں، سارے صوبے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. اب ہم گائیڈ لائنز دیں گے یہاں سے پوری طرح کہ کیسے ان نیشنل پارکس کو پرزرو کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نیشنل پارکس بچیں گے نہیں. جو مقامی لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو روزگار بھی اس میں سے ملے، ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پارک بنے گی تو ہماری زندگیوں بہتر ہو جائیں گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شہروں کے لیے ماحول دوست ماسٹر پلان بنائے جائیں گے. شہروں کے لیے میں نے پورا زور لگا رہا ہوں، آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے. ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں. نہ ہم ان کو سیوریج دے سکتے ہیں لوگوں کو، جو ہماری لائنز ہیں بجلی گیس وغیرہ ویسٹ ڈسپوزل، وہ اتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کو صاف نہیں رکھ سکیں گے. تو جب پہلی اسٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا، نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا، اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امیونٹیز دینا چاہتے ہیں. یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے. موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر قدرتی ماحول کے لیے محفوظ علاقوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم بھی شروع کی گئی ہے. تقریب میں ورلڈ کنزرویٹو سوسائٹی کے جارج شیلر، پروٹیکٹڈ ایریاز کے عالمی کمیشن کی سربراہ کیتھی میک-کینن اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ایشیا کے ایلیکس میک ولیم کے ویڈیو پیغامات نشر کیے گئے. انہوں نے قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کے حکومتی اقدامات کو سراہا. A wonderful vision for the future of this country that happens far too rarely in this world, because if you treasure nature, it will repay you. I want to congratulate Pakistan on this exciting new initiative to create 15 new national parks. Let me commend again the Prime Minister, Minister, and all of those involved in this exciting initiative. I'm very pleased today to speak on behalf of IUCN to mark this significant moment in nature conservation in Pakistan. I would like to congratulate the Government of Pakistan for launching the Protected Areas Initiative, which aims to conserve nature and generate jobs. تقریب میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی وزیر اعلیٰ، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور کلین گرین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے جامع منصوبے شروع کرے. ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بالکل جی، رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے ہارون الہی طور کی. اور یہ بڑا آسان اقدام جس کو جو دیگر ماہرین ہیں جو انٹرنیشنلی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے بھی سراہا جا رہا ہے. تو اسی اہم خبر پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرتاج گل صاحبہ. السلام علیکم زرتاج صاحبہ. وعلیکم السلام. زرتاج صاحبہ، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ ہمارے نیوز شو کے لیے وقت نکال رہی ہیں. بڑا ایک آسن، بڑا ایک کارآمد جسے کہا جائے کہ آج فیصلہ کیا گیا ہے جس سے عوام کے لیے بہت بہتری ہے، اور خاص طور پر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو لے کر بہت زیادہ چیزیں بہتری ہونے والی ہیں. 13 سے بڑھا کر 15% رقبے پر اب ہمیں پاکستان میں جنگلات انشاءاللہ بہت جلد دکھائی دیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا ضروری تھا یہ فیصلہ کرنا، اور اب اس کے اثرات کیا ہوں گے خاص طور پر جب ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ میم تھینک یو جی، بہت شکریہ. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے بارے میں، وہ ہماری منسٹر کے پرائم منسٹر جو ہے وہ منسٹر انچارج بھی ہیں، اور ہمارا کام سب سے زیادہ جو ویژن ہے وہ پرائم منسٹر خود ہی دیتے ہیں، اور ان کے ہی پروجیکٹ ہوتے ہیں، انہی کی برین چائلڈ ہوتے ہیں. ہم نے ان کے اوپر صرف کام کرنا ہوتا ہے. آج ایک اور بہت بہترین انیشیٹو لیا گیا کہ 15 کے قریب نیشنل پارک جو ہیں وہ ڈکلیئر ہم کرنے جا رہے ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج. اور اس میں بیسک جو مقصد ہے 15% فارسٹ کور نہیں ہے. بیسکلی ہمارا جو اس وقت 4.8 فارسٹ کور ہے،
اور انٹرنیشنلی جس ٹائم انٹرنیشنلی 25% ہونا چاہیے جو سب سے بہتر ہے, اور جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو ہمارا فارسٹ کور 33% تھا, لیکن انفارچونیٹلی 2% فارسٹ کور کو کاٹ کے ہر سال کاٹ کے 1995 سے لے کر 1915 تک 2015 تک اس کو انفارچونیٹلی صرف 4% کر دیا گیا 33% سے. یہ جو آج آپ نے 15% کی بات کی ہے, یہ بیسک یہ ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو نیشنل پارک ہے وہ آج 15 ہم لوگوں نے عمران خان نے ڈکلیئر کیے ہیں ساؤتھ پاکستان. اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ہم کنزرویشن کرنا چاہتے ہیں نیچر کی بھی, بایو ڈائیورسٹی کی بھی, اور نیچرل ہیبیٹاٹ جو ہیں, جو ہمارے ایسے فلورا اینڈ فانا ہیں یا ہمارے پاس ایسے جو اسپیشیز ہیں یا ہمارے پاس ایسے اینیملس ہیں جو ہم لوگوں نے ہمارے آباؤ اجداد نے تو دیکھے تھے, مگر اب ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشن ہیں, ختم ہو رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ نیشنل پارک ہے. فار ایگزامپل لال سہارا پارک ہے ہمارے پاس جو بھاگلپور کے اندر ہے. اگر آپ جونیپر کا نیشنل پارک دیکھیں جو وہ یونیسیف نے قرار دے دیا تھا, ہمارے پاس یہ 1,000 سال کے پرانے جو ہیں وہ پلانٹس ہے جونیپر کے. لیکن انفارچونیٹلی جو نیشنل پارک کا کانسیپٹ ہے کہ جو نیشنل پارک کو ڈکلیئر تو کر دیا, لیکن اس میں پھر بےدریغ لکڑی بھی کاٹی جاتی ہے, چیزوں کا نقصان بھی ہوتا ہے, اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا. آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے انیشیٹو لیا ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو انوالو کر کے کہ ہم سے پراپر گائیڈنس لیں گے, ہم میکنزم لیں گے کہ ہم نے پراپر مینٹین کیسے کرنا ہے ان نیشنل پارک کو. صرف ڈکلیئر نہیں کرنا, ہم نے ان کو ایز اے نیشنل پارک جو ہے پرزرو بھی کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ نقصان نہیں پہنچانا نیچر کو, ہم نے ہیبیٹاٹ کو نقصان نہیں پہنچانا, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایٹ لیسٹ یہ دیکھ سکے کہ پاکستان میں کس قدر خوبصورت چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں دی ہیں جو شاہکار ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے ایکو ٹورزم کو بڑھا سکتے ہیں, ہم جابس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی ہیبیٹاٹ کو اور اپنی ہیبیٹیشن کو اور اپنی نیچرل کنزرویشن کر سکتے ہیں. وہ فار ایگزامپل ہم مارکور کو دیکھ لیں, آپ آئیبیکس کو دیکھ لیں, یہ ایسی پاکستان میں چیزیں ہیں جو بالکل اور ممالک میں نہیں ہے. سنو لیپرڈ کو آپ دیکھ لیں, یہ پاکستان کے علاوہ کہیں پر بھی ہے. اگر آپ پلانٹس دیکھیں تو جونیپر پلانٹس دنیا میں پاکستان میں سب سے بہترین ہے. یہ 1,000 سال پرانے, یہ کلائمیٹک چینجز کو بھی بتاتے ہیں, نیچر کو بھی بتاتے ہیں, یہ پراپر ایک ہسٹری ہے. تو اس کو کنزرو کرنے کے لیے آج 15 نیشنل پارک پرائم منسٹر نے, اور جو پچھلے والے بھی ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا جیسے لال سہارا پارک ہے یا پھر وہ ہے جونیپر کا اجارت ہے, ہم ان کو بھی مینٹین کرنے جا رہے ہیں, پراپر کنزرویشن کر رہے ہیں, پراپر میکنزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, زبردست. جو پہلے سے پاس موجود ہے ان کو مینٹین بھی کیا جائے گا. اچھا زرتاج صاحب, یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کوئی وقت وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا ہے, آپ لوگوں کو ہدایات کچھ اس بارے میں دی گئی ہے کہ جو 13 سے بڑھا کر اس رقبے کو 15% کرنا ہے, یہ کتنے وقت کے اندر کرنا ہے؟ پھر بہت سارے درخت زرتاج صاحب ایسے کہے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ زمین سے پانی لیتے ہیں, لیکن گزشتہ ادوار حکومت میں وہ بھی یہاں پر کاشت کیے جاتے رہے ہیں, لگائے جاتے رہے ہیں. تو کوئی درختوں کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ طے کیا ہے, کون سے اب درخت زیادہ لگائے جانے ہیں؟ کچھ اس بارے میں بھی بتائیے گا. اور پھر جو بجٹ ہے وہ کچھ مختص کیا گیا ہے, کچھ سرمایہ اس بارے میں کوئی اور لگا رہا ہوگا یا گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے رہی ہوگی, اور کتنا بجٹ ہے کچھ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ کوشچن آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ اگر ہم اب منسٹر آف کلائمیٹ چینج جو اتنا زبردست کام بھی کر رہی ہے, اور پہلی دفعہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج پاکستان میں اور دنیا میں اپنے آپ کو ہم لوگوں نے پلاسٹک بیگ بین کے ساتھ, ایکو ٹورزم پالیسی کے ساتھ, ای ویہیکل پالیسی کے ساتھ, اور اسی طریقے سے جو ہم لوگوں نے کلین گرین پاکستان بنائے یا 10 بلین ٹری سونامی, یہ پروجیکٹ کبھی بھی پاکستان میں نہیں دیے گئے. یہ گرین انیشیٹو کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ SDGs کی دنیا کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان نے اپنا ایک ہی ٹارگیٹ میٹ کیا ہے SDG 13 کا, اور وہ یہ کلائمیٹ چینج یا گرین انیشیٹو جو پاکستان کا ہے اسٹیمولس پیکج, ہم نے اسی کو اچیو کرنے کا ہم نے کیا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جب ہم اتنا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کون سے پلانٹ ہمیں لگانے چاہیے, یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, IT فارسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں, پورا ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی ہمارے پاس ونگ ہوتا ہے, فارسٹری ہمارے پاس بورڈ ہوتا ہے, پھر ہمارے پاس صوبے ہیں. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو KPK گورنمنٹ نے بڑا اچھا فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے. تو یہ پراپر IT فارسٹ کے نیچے یہ تمام منسٹر آف کلائمیٹ چینج میں بیٹھتے ہیں, یہ ایریا سب جگہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کون سا سسٹینیبل ہے. فار ایگزامپل کیکر ہے, نیم ہے, شیشے میں, یہ درخت ہمارے ماحول کے لیے بھی سب سے بہتر ہے, یہ پائیدار بھی ہیں,
सस्टेनेबल भी हैं, इनकी जिंदगी भी लंबी है, लेकिन ये बहुत सख्त जान होते हैं, ये हमारे नेचर को सूट भी करते हैं, ये इंडिजिनस हैं, ये हमारे अपने मुल्क के अंदर पैदा होते हैं, तो ये जो हैं इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके मुकाबले में जो आपने कहा कि जो प्लांट्स या जो पौधे जो पिछले कुमत में लगाए थे जो पानी ज्यादा देते हैं लेते हैं, और हम तो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज के अंदर आ चुके हैं, तो वो हम इसका बिल्कुल ख्याल रखते हैं, बल्कि हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम जो अपने हाईवेज मोटरवेज हैं उसमें जो हम प्लांट्स लगाए हैं, हमने उसमें जैतून को डेवलप करने की कोशिश की है, हम उसमें फ्रूट प्लांट्स के ऊपर जा रहे हैं, बेरी के दरख्त हम लगा रहे हैं ताकि लोगों को शहद मिल सके। हम बिल्कुल इसका ख्याल करते हैं कि हम मौका और जगह और एरिया के लिहाज से प्रॉपर हमारे जो आईजी फॉरेस्ट हैं उनके पूरा फॉरेस्ट विंग है वो इन चीजों को सोचता है कि हमने किस जगह पे कौन से पौधे लगाने और सस्टेनेबल लगाने और जिनकी जिंदगी जो है वो लंबी हो। ठीक है जी, जिंदगी भी लंबी हो, पानी का भी ज्यादा नुकसान ना हो और आम जो लोग हैं उनके लिए फायदेमंद भी हो, जैसा कि आपने शहद की पैदावार का जिक्र किया। बहरहाल जरताज गुल साहिबा आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी डिटेल में आपने हमें बताया है कि मंसूबा किस तरह से शुरू होने वाला है और इसका फायदा क्या क्या होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब आप मुझे सुन सकते हैं? कोशिश करेंगे जी मलिक अमीन असलम साहब से हमारा राब्ता हो, लेकिन बहुत कुछ जानने को मिला हमें जरताज गुल साहिबा से, और वो जो एक सवाल जहन में आता है जब कोई दरख्त लगाया जाता है कि जी दरख्त ऐसा हो जिसकी छांव में कोई बैठ सके, उससे फायदा उठा सके, ये शहद की पैदावार के हवाले से जिस तरह से जरताज गुल साहिबा हमसे बात कर रही थी, तो उस तरह के अब जो दरख्त हैं, जो प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे। कोशिश करेंगे बात कर सकें मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब से भी इस बारे में, क्योंकि वो आज होने वाली इस इजलास के अंदर मौजूद थे और उनसे वजीर आजम इमरान खान ने सवालात भी बहुत सारे किए, उन्होंने ब्रीफिंग भी दिया मुख्तलिफ। बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो अहम इनिशिएटिव लिया गया है, जैसा कि हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम इमरान खान का ये अज़्म था सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। हमने देखा कि वजीर आजम ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब वो वजीर आजम के ओहदे पर बराजमान हुए उसके बाद भी उन्होंने हमें देखा कि इस मुहिम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। हमें बताया जा रहा है कि मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आज तो आपने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, फिर भी आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। फरमाइए जैसा लगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो इतना बड़ा आज फैसला किया है, ये जो इजलास में आप लोगों को बताया गया, आप लोगों को हिदायत की गई 13 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा जंगलात जो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। सर आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, आपने इस इजलास में बात भी की होगी वज़ीर आज़म से, कितना आसान है इस हदफ को अचीव करना हमारे लिए? हाँ जी इंशाल्लाह, ये एक तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि हमारे मुल्क के जो कुदरती एरियाज हैं उनको जिनको हम बचाना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है जिसको प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। उसमें जंगलात भी शामिल है और उसके अलावा भी ऐसे एरियाज जहाँ पे जंगल नहीं है लेकिन वो कुदरती हुस्न है उनमें, उनको हम बचाना चाहते हैं पाकिस्तान में। उनका हमने हदफ अपने लिए सेट किया कि हम इंशाल्लाह 2023 तक उनको 15% तक लेके जाएंगे। और इस वक्त जब हम हुकूमत में आए थे तो ये पाकिस्तान के 12% थे और अभी हमने इसको ऑलरेडी 1% इंक्रीज कर लिया है, इसलिए हमें काफी यकीन है कि इंशाल्लाह 2023 तक हम इस हदफ को पूरा कर लेंगे। सही। और दूसरा हदफ इस सिलसिले में ये है कि जिन एरियाज को हम नोटिफाई करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क, उनको सिर्फ नोटिफाई ना किया जाए बल्कि उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके लिए हम एक नेशनल पार्क सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 नेशनल पार्क जो कि तकरीबन 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा एरिया बनता है, इस एरिया को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसकी गवर्नेंस सिस्टम बनाए जाएंगे, मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाएंगे, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाएगा और इसके साथ साथ इसके अंदर एक ऐसी सर्विस जिसमें आपके निगहबान और गार्ड होंगे, यंग लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा। और हमारा हदफ है कि इंशाल्लाह इस साल हम 5,000 लोगों को इस नेशनल पार्क सर्विस में भर्ती करेंगे। सर आपने बताया कि जो मुकामी नौजवान हैं उनको भी इस हवाले से रोजगार फराहम किया जाएगा, यकीनन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान में सर तेजी से बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। सर प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव से सर सियाहत के लिए ये इनिशिएटिव कितना सूदमंद साबित हो सकता है? ये बहुत ज्यादा सूदमंद इंशाल्लाह साबित होगा, क्योंकि दुनिया में जितनी सियाहत इस वक्त है वो इसी तरह के नेशनल पार्क और जो
जहाँ पर कुदरती हुस्न को बचाया जाता है, तो उन पार्क के इर्द गिर्द जो है वो सयाहत घूमती है। और पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला के बड़ा निमते हैं, यहाँ पर आप पहाड़ों से लेकर यहाँ पर आप देखें आपके जो आपका कोस्ट लाइन है समुंदर की, उसके अलावा डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर स्क्रब फॉरेस्ट हैं, हर किस्म की यहाँ पर टेरेन मौजूद है। इसलिए हमने ये जो 15 नेशनल पार्क चुने हैं, ये पाकिस्तान की जो 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं ये 15 नेशनल पार्क। और इसके अलावा ये हर सूबे में कम अज कम एक नेशनल पार्क रखा है ताकि तमाम सूबे भी इससे शराकतदार हों। तो इंशाल्लाह जब ये अब इससे स्टार्ट होगा तो इसके इन नेशनल पार्क में कम्युनिटीज को भी नौकरियां देंगे और उसके साथ साथ हम ये साथ सयाहत को फरोग करेंगे, जिसकी वजह से और नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा हों। अच्छा मलिक साहब, जरा ये फरमाइएगा, जब दरख्त लगाने की बात होती है, हम लोग भी आवाम से, पीटीवी के प्लेटफॉर्म से, दीगर प्लेटफॉर्म से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं दरख्त लगाइए, लेकिन हमारे आवाम उसको इस तरह सीरियस लेते नहीं हैं जितना सीरियस मसला ये है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि मेरे अपने बच्चों के स्कूल में या मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के, वहाँ जब एक मुहिम चलाई जाती है कि स्टूडेंट्स को दरख्त लगाने हैं तो बच्चे दरख्त लगाते हैं। तो ऐसा कुछ सोचा गया आज के इस इजलास में कि मुख्तलिफ कॉलेजेस को, मुख्तलिफ स्कूल्स को साथ लेकर चला जाए इस मुहिम के अंदर? इसमें बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सारे दरख्त लगेंगे इस तरह से। जी बिल्कुल, इसमें बच्चों को भी साथ रखा जाएगा, बल्कि आज जो इसमें 3 बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमें स्पेशल वीडियो मैसेजेस भेजे। तो उनमें से एक वीडियो मैसेज जो था वो एक जॉर्ज शैलर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला नेशनल पार्क जो था खुंजराब, उसके बनाने में उस वक्त 1970s में मदद की थी। उन्होंने ये बात की उसमें अपने मैसेज में कि ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब आप कोई भी एरिया को नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया करते हैं, एक तो ये कि उसके पार्क के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज को आपने इसमें शराकतदार करना है, तभी आप उन हुस्न को और इस नेचुरल एसेट को बचा सकेंगे जब वो बीच में होंगे। और दूसरा ये कि जब हमने फ्यूचर को भी देखना है, और जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो फिर हमें बच्चों को शामिल करना है इसमें, उनको हमें नेचर से रुशनास कराना है, इन नेशनल पार्क में लेकर जाना है, और सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उनको प्रॉपर एक एक्सपोजर देना है नेचर का, ताकि वो उसकी कदर कर सकें। अच्छा सर, आज के इस इजलास में शहरों में मास्टर प्लान के हवाले से भी बात हुई है, और हम देख रहे हैं कि मास्टर प्लान ना होने की वजह से बहुत सारे शहर ज़ाया हो रहे हैं। मास्टर और टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, इससे शहरों को कैसे बचाया जा सकता है और इस पर क्या गौर व फिक्र की जा रही है, ये सर कितना जरूरी है आपके नजदीक? बिल्कुल, ये मास्टर प्लान जो है हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो होती है वो बगैर किसी प्लानिंग की होती है, और पहले लोग जाके आबाद हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हमें सब गैस, बिजली, पानी सब सहूलतें मुयस्सर की जाएं। तो ये तो दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता कि लोग बगैर किसी प्लानिंग के आप जिधर चल चाहे आप घर बना लें और फिर आप हुकूमत को कहेंगे कि अब यहाँ पे हर हमें सहूलत जो है वो मुयस्सर की जाए। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम एक प्रॉपर प्लान के तहत एक्सपेंशन करें। दूसरा मसला ये है कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो अब ज़राई ज़मीन को खाते जा रहे हैं, जो ज़मीन ज़राअत के लिए सूदमंद है और वहाँ पर वो मुल्क के लिए पैदावार पैदा होती है, उधर हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, तो उनको रोकने की जरूरत है। तो इस सिलसिले में कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अहम मीटिंग कॉल की है, तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लानिंग के बनने से एक बात की जाएगी। ये पाकिस्तान में होता था 1960 की दहाई तक के प्लान बनते थे, उनको अमल किया जाता था। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ट्रैक से उतर गया और प्लान खत्म हो गए, और जिसका दिल चाह गया उसने जमीन ली, हाउसिंग सोसाइटी बनाई और फिर आगे चलता गया। तो वो ये मॉडल बिल्कुल पायदार नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, मलिक अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुशीर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी बातें हमें जानने को मिली आज इस इजलास में क्या हुआ है, वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी हैं अब उन पर अमल किस तरह से किया जाएगा। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कश्मीर के सूरत हाल पर।
नाज़रीन, यहाँ तज़किरा करेंगे मकबूजा वादी का, जहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और एक वीडियो वायरल हुई है और एक तस्वीर वायरल हुई है नन्हे बच्चे की अपने 70 साल दादा के साथ वो बाजार जा रहा था कि भारतीय फौजियों की जानिब से फायरिंग की गई, बर्बरियत का निशाना बनाया गया और वो बच्चा अपने नाना के सीने पर बैठकर रो रहा था और इस हवाले से उस बच्चे को हुआ ये कि पहले उसके नाना को, जिनकी उम्र 70 साल के करीब बताई जाती है, इस 3 साल बच्चे के सामने शहीद किया गया। उसके बाद जो भारतीय फौजी हैं उन्होंने मजीद जुल्म ये किया कि खून में लुथड़े हुए उस शख्स की जो नाश थी, ये जो नाना थे इस बच्चे के, उस नाश के ऊपर इस बच्चे को बिठा दिया गया सिर्फ कुछ पिक्चर्स लेने के लिए, क्लिक्स के लिए। उनके क्लिक्स लिए गए बच्चों के, बच्चे के कपड़े पे भी सारा खून उसके नाना का लग गया और फिर ये जो क्लिक्स थी, ये जो पिक्चर्स थी, इनको वायरल किया गया सोशल मीडिया पर और समझा इससे ये गया कि शायद जी इससे भारत की वाहवाह होगी, लेकिन इससे भारत की सुबकी हो रही है पूरी दुनिया में। अल जजीरा का, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया, अल जजीरा ने इस फैमिली का इंटरव्यू किया है, मुतासरीन का इंटरव्यू किया है और मुतासरीन का कहना ये था कि ये जो साहब थे ये अपने इस बच्चे के साथ, अपने इस नवासे के साथ गाड़ी में जा रहे थे, इनको गाड़ी से बाहर निकाला गया घसीट कर और फिर इनको निशाना बनाया गया। बाद में ये कहा गया कि ये तो जी क्रॉस फायरिंग हुई है। अगर क्रॉस फायरिंग हुई है, ये गाड़ी में मौजूद थे, आपने इनको घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला, गाड़ी के ऊपर कोई निशानात होने चाहिए थे आपकी फायरिंग के, ये तो बिल्कुल निहत्ते थे। और अगर इन्होंने आपसे क्रॉस फायरिंग करनी होती तो ये अपने घर से अपने 3 साल नवासे को साथ लेकर क्यों निकलते? सवालात बहुत से हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं भारत के पास। और खास करके बच्चा जो दिल दहला देने वाले जो मनाजिर हैं, यकीन कीजिए कि वो वीडियो में पूरी तरह से नहीं देख सका। बच्चा जिस तरह से बयान कर रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया और इसी वाकये को लेकर यकीनन इस पर रिपोर्ट करेंगे इमरान मनसब की रिपोर्ट भी यकीनन हम इस बारे में देखेंगे। अभी जब हमारे पास रिपोर्ट तैयार होगी मैं पैनल से बताया जाएगा। बिल्कुल जी, प्रोड्यूसर हमारे कह रहे हैं रिपोर्ट तैयार है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद इस पर हम मजीद बात करेंगे। बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारा और गोलियां मारकर शहीद करके लाश पर बिठा दिया गया। ये दर्दनाक मंजर है मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर की एक मसरूफ सड़क का। खून में लथपथ नाना की लाश पर रोते मासूम को कौन बतलाए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इसकी लाश की ये तस्वीर आलमी जमीर को झंझोड़ती रहेगी। शहीद बशीर अहमद की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। सिक्योरिटी एहलकार लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाते रहे। मोदी की दहशतगर्द फोर्स ने बच्चे को मोबाइल में बिठा लिया। खौफ और गम का शिकार नन्हा बच्चा बिलखता रहा। वाक़े पर शहीद बशीर अहमद के अहले खाना ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील कर दी। भारतीय फौजियों की सफाकियत के बाद ट्विटर पर सोपुर ट्रेंड करने लगा। मासूम कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत की भारत में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों समेत आलमी सतह पर शदीद मजम्मत जारी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि मासूम बच्चे के सामने नाना को गोलियां मारने के वाक़े ने लोगों के दिल दहला दिए हैं। इससे बड़ी बेहसी और बर्बरियत का मुजाहरा नहीं हो सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश और शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। वज़ीर खारजा ने कहा कि ये वाक़या मावराए अदालत कत्ल के जुमरे में आता है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर में होने वाली जुल्म ज्यादती को उजागर किया और इस वाक़े को भी हर फोरम पर उठाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कश्मीर में इंटरनेट और दीगर ज़राए मवासलात भी बंद कर रखे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक की तंजीमों को अब इस मामले पर आवाज उठाना होगी क्योंकि ये इंसानियत का भी तकाजा है। गासिब भारतीय फौज एक माह में 54 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीरियों के लहू से जलते ये चिराग आजादी की सुबह तक इसी तरह फरोजा रहेंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
بالکल जी, अक़वाम आलम के सामने अब ये तस्वीर मौजूद है, ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये भी मौजूद है, लेकिन इस पर एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा. मजम्मत बहरहाल इसकी की जा रही है. और क्या ही बात करें हम भारतीय फौज की, जिसके भी थोड़े ही रोज पहले जबरदस्त किस्म की पिटाई हुई है चाइना से. वहां तो भारतीय फौज कुछ कर नहीं पाई, लेकिन ये जरूर किया कि एक निहत्ते बुजुर्ग पर फायरिंग की गई, उसको शहीद किया गया और फिर एक छोटे मासूम बच्चे को उठाकर, जो ये चीजें समझने से भी कासिर है, उसको उनकी डेड बॉडी के ऊपर रखा गया. उसके कपड़े जो हैं हम खून से लुथड़े हुए देख सकते हैं और फिर उसे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाया गया. अच्छा, होता ही है जब हम खुद भी छोटे थे तो हमारे जब हम कोई पुलिस वाले को या किसी फौजी को देख लेते थे या असले को देखते तो हम खौफजदा हो जाते हैं. बच्चों की एक नेचर ऐसी होती है. तो आप ये सोचिए कि जब इतने ज्यादा फौजी जो हैं और वो वाले फौजी जिन्होंने इस बच्चे के नाना को शहीद किया है, वो ये फौजी जब इस बच्चे को उठाते हैं तो इसके जहन पर क्या असर पड़ा होगा. फिर जब इसे बख्तरबंद गाड़ी में लेकर ये घूमते रहे तब उस बच्चे ने क्या महसूस किया होगा. और फिर बाद में इसे लालच दी जाती रही कि हम आपको चॉकलेट्स लेकर दे रहे हैं, हम आपको बिस्किट्स लेकर दे रहे हैं. नहीं, इस बच्चे को चॉकलेट्स चाहिए, ना इसको बिस्किट्स चाहिए, इसको इसके नाना अब्बू चाहिए जिनको शहीद कर दिया गया है भारतीय फौज की जानिब से. और जी, चाइना की जब हम बात कर रहे थे, जो हालत इनकी चाइना ने की उस पर मोदी सरकार जो ये कहती दिखाई दी हमें कि जी बदला लिया जाएगा, मुआफ नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने बदला ये लिया अली कि 59 यानी 59 जो एप्लीकेशंस हैं इनकी चाइना की मोबाइल एप्लीकेशंस, इनको बंद करके बदला लिया. इससे ज्यादा बदला ये वहां पर नहीं ले सके, लेकिन मकबूजा कश्मीर में ये क्या करते फिर रहे हैं, ये दुनिया भर के साथ. इसी पर बात करेंगे. यूसुफ नसीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हुर्रियत रहनुमा. सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. भारतीय फौज की जुल्म की इंतहा हम सबके सामने है और बच्चे के सामने नाना का कत्ल किया गया. दुनिया लरस गई है. सर, दुनिया बच्चे की आह सुनेगी, आर्मी बरादरी कब उठ खड़ी होगी सर? मैं समझता हूं कि अगर आज इस तांजे को देखकर भी ये अमन के अलंबरदार, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, वर्ल्ड पावर्स, यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उनकी आंखें नहीं खुली तो आप यकीन करें उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी. आपसे ये अर्ज करता चलूं कि पिछले 11 महीनों से हम लॉकडाउन का शिकार हैं कश्मीर के अंदर. हमारी माएं, बहनें, बच्चे, स्कूल, एजुकेशन, लीडर सब जेलों में बंद और हमारी नौजवान नस्ल के 1400 से ज्यादा बच्चों को जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, कॉलेजों के, गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर ले गए. लेकिन आज सोपर में कल एक बेगुनाह शहरी जिसकी उम्र 64 साल थी, वो अपने नवासे को लेके जा रहा था और उसको गोली मार दी गई. और उस नवासे ने जो हाथ में पत्थर उठा के फौज को ललकारा उस सिपाही को, हालांकि 3 साल के बच्चे में सूझबूझ नहीं हो सकती इस किस्म की, लेकिन अगर उस बच्चे का रिएक्शन देखा जाए, उसका मूड देखा जाए, उसका दुख देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि अर्श अजीम को भी हिल जाना चाहिए था. आज इस मौके को हमने सब कुछ बर्दाश्त किया. हम 11 महीनों से लॉकडाउन बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो दर्दनाक एक सानिया ऐसा पेश आया सोबर के अंदर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है. और आज भी अगर दुनिया की आंखें न खुली, मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ कि जब हम पिछले 11 महीनों से इस लॉकडाउन का शिकार थे तो दुनिया के समझ भी नहीं है लॉकडाउन क्या है. आज जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल के तो अमेरिका तक का शिकार बना है, मैं ये समझता हूँ कि ये है कश्मीरियों की, जिसकी तरफ इन लोगों ने तवज्जो मबजूल नहीं कराई, तो आप पूरी दुनिया इस अजाब में गुजर बसर कर रही है. अच्छा, तो यूसुफ साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे भारत के साथ जो चाइना ने किया, जिस तरह से उसकी मरम्मत की, उसकी पिटाई की और जिस तरह से उसको सबक सिखाया. उसके बाद मोदी सरकार ने फरमाया कि जी हम बदला लेंगे, बदला जरूर लिया जाएगा, इसको माफ नहीं किया जाएगा. 59 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी, ये बदला लिया भारत ने. लेकिन मकबूजा कश्मीर में हम सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ देखते हैं. जो भारतीय फौज है वो औरतों को शहीद करती है, उनकी इज्जतों को पामाल करती है, बच्चों के ऊपर जुल्म करती है. कल ये वाकया हमने देखा तो दिखाई ऐसा नहीं देता यूसुफ नसीम साहब की जो भारतीय फौज है इसको अब ये सिर्फ और सिर्फ औरतों से लड़ सकती है, बच्चों से लड़ सकती है. ये वाकईतन अगर कहा जाए कि मुकाबला कर सकती है किसी का, तो बिल्कुल नहीं कर सकती. चाइना का वाकया इसकी गवाही है. देखिए, ये बात साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान का एक चेहरा जो दुनिया ने देखा था एज ए सेक्युलर एंड लार्जेस्ट सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, आज जब से मोदी की बूथ की दुनिया ने देखी है तब से वो सिस्टम ही चेंज हो गया है. आज उसका जिगरी दोस्त नेपाल अपने आप को खतरा समझता है. आज बांग्लादेश
जिसको उन्होंने बनाने में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को कमजोर करने में, दोलत करने में भारत ने पूरी ताकत को इस्तेमाल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों में वो गैरत आ गई है कि मोदी क्या कर रहा है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ, खासकर मुसलमानों के साथ और हमसाया मुमालिक के साथ। आज किसी के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। पहले तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन जो कुछ आपने फरमाया कि चीन ने जो उनकी वहां मरम्मत की है लद्दाख में, वो ये समझते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और कश्मीर के हवाले से हर लिहाज से सफारती महाज पर यूनाइटेड नेशन में चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ। लिहाजा उन्होंने कोशिश की उस वादी में एक नया एयरपोर्ट कायम करने की और अपनी फौज ले जाने की, लेकिन चाइना ने वो डंडे के जोर वहां से इनको निकाल दिया और सबक सिखाया जो इनकी नानी को भी याद रहे। बिल्कुल जी, ये सबक जो है ये भारत को याद रखना चाहिए और याद रहेगा भी। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे। यूसुफ नसीम साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नाज़रीन हम बात कर रहे थे और जिस तरह से कल एक नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया गया, तो उसके पर झूठ बोला जा रहा है भारत की जानिब से, लेकिन जो सच है वो इंटरनेशनल मीडिया भी सामने लेकर आ रहा है और हम भी सामने लेकर आते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखेंगे और आपको इस हवाले से बताया जाएगा कि ये वायरस किस तेजी से फैल रहा है और अब तक मरीजों की तादाद कितनी हो चुकी है और कितने मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इस हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आसमान हमने देखा था कि पिछले हफ्ते या डेढ़ हफ्ते की अगर हम बात करें तादाद थोड़ी कम हुई थी, हौसला अफजा रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो रवां हफ्ता है इसमें केसेस की तादाद फिर दोबारा से ज्यादा होना शुरू हो गई है और जैसा कि आज रिपोर्ट हुए हैं 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और वजह यही है अली कि जब हमारी जानिब से बताया जाता है या कहीं से भी लोगों को ये बात पता चलती है कि अब जी कोरोना के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इसको संजीदा नहीं लेते हैं वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो जी अब तो शायद कोरोना का खात्मा हो रहा है या ये वायरस है ये दम तोड़ रहा है, तो फिर ऐसे में ये लोग और बदएहतियाती शुरू कर देते हैं। अब जितने लोग बदएहतियाती कर रहे होते हैं वो भी इस मरज में, इस वबा से मुतासिर होते हैं और जिनके साथ वो इंटरेक्शन में होते हैं उन लोगों को भी वो मुतासिर करते हैं और इसी तरह से ये तादाद बढ़ती चली जाती है। अच्छा जी, कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की जो तादाद बताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2,17,000 के करीब बताई जा रही है और 4,437 से कुछ ऊपर ऐसे लोग हैं, 473 से जो लोग जाँ बहक हुए हैं। तो इस मामले को हमें बहुत संजीदा लेना चाहिए। हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है अली और मुतासरीन की तादाद भी बढ़ सकती है अगर हमारा यही तौर तरीका रहा जो भी है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई इस वबा को लेकर के आया। इसकी एक नई लहर का शायद आना बाकी है, तो ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। जब तक इसकी जी बिल्कुल हाँ, जब तक अगर इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तब तक हमें एहतियात करना होगी, महदूद रहना होगा, महफूज रहना होगा और एहतियाती तदाबीर नागुज़ीर हैं, तभी हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। जिन पे हमें अमल करना है सिंपल है, आपको अपने हाथ धोने हैं बार बार 20 सेकंड के लिए धोने हैं और इसके अलावा आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है अगर आपको सैनिटाइजर कहीं से इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें इस वक्त देही इलाकों में सुन रहे हैं, गांव देहात में सुन रहे हैं, सैनिटाइजर उनके पास नहीं है, तो अपने घर में मौजूद किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपने हाथ धो सकते हैं, इससे महफूज रह सकते हैं। अच्छा जी, इस चीज में कितनी सच्चाई है और ये जो मुख्तलिफ SOPs हैं ये किस हद तक हमें बचा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर इमरान खान साहब से, हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि SOPs में कहां तक अमल दरामद जो है हमें बचा सकता है इस मरज से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैंने आपको बहुत ज्यादा मुतहर्रिक देखा है, खासतौर पर ये कोरोना वायरस को लेकर। आप चूंकि आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के लोगों को आप बहुत ज्यादा समझा रहे होते हैं, चीजें बता रहे होते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, कुछ फैसलाबाद की सिचुएशन हमसे आप शेयर कीजिएगा। आज तो बाजार खुल गए हैं, मार्केटें खुल गई हैं, लोग आपको दिखाई दे रहे हैं फैसलाबाद में अमल दरामद कर रहे हैं उन तमाम चीजों पे जो आप सीनियर्स की जानिब से, एक्सपर्ट की जानिब से बताई गई थी उनको? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, फैसलाबाद के हवाले से अभी पिछले जो 15 दिन से वो जो पार्शल सेलेक्टिव जो है वो लॉकडाउन था फैसलाबाद में भी, स्पेशली जो हमारे मार्केट्स हैं यहाँ पे भी। और चूंकि अभी 2 दिन पहले से जो है वो फर्स्ट से दोबारा से बाजार खुल गए हैं और जो हमारे ताजर हैं उन्होंने इंश्योर किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इन पॉलिसीज को जो है वो इंश्योर करेंगे कि वो SOPs जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन ये है कि जाहिर है हम शुरू से, जब से ये पैंडेमिक का पाकिस्तान में आउटब्रेक स्टार्ट हुआ है, अभी तक हम देख रहे हैं कि पब्लिक की तरफ से जो है वो जिस तरह की ताउन की जरूरत दरकार थी वो उस तरह से डेफिनेटली नहीं हो रहा। और डेफिनेटली जो लोग हैं वो मार्केट में जो तमाम लोग जो आ रहे हैं वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। और अगर आप देखें थोड़ा सा ट्रेंड, तो ये जो पिछला जो लॉकडाउन हुआ था उसमें फिर जो केसेस की तादाद थी वो कम होना शुरू हो गई थी। तो इस बात का खर्चा है कि दोबारा से अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो केसेस नंबर जो है ऊपर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि केसेस की तादाद कुछ कम हुई, एक खुशाइन खबर थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में दोबारा से तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजूहात आपके नजदीक SOPs पर अमल दरामद का ना होना और इनफरादी और इज्तिमाई जो हमारा अमल है वो किस हद तक मौसर साबित हो सकता है इस वबा की रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, देखें इसमें जो कोरोना वायरस में जो बचाव जिस चीज से हो सकता है वो SOPs के अमल दरामदी है। हमने ये भी देखा कि लोगों ने इन सिम्टम्स के साथ जो थी वो हॉस्पिटल्स में जाना से जो है अवॉइड किया, लोगों ने घरों पे रहना, और उससे ये हुआ कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो भी इन्फेक्ट होना शुरू हुए। फिर बाद में थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल कुछ बढ़ा और फिर हॉस्पिटल की तरफ लोग जाना शुरू हुए। जैसे ही लोग जो है वो कम्युनिटी में एक वेव आती है, एक फियर जनरेट होता है और लोग जो है वो टेक केयर करनी शुरू कर देते हैं, SOPs को अमल दरामद शुरू कर देते हैं। जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट बता रही है, अगर वो उन पर अमल करते हैं तो डेफिनेटली केसेस की तादाद जो है वो नीचे चली जाती है। और इसमें आपको बताऊं कि देखिए, देयर इज ओनली वन वे इसको स्टॉप करने का, और वो सिर्फ और सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हुई है उनके अमल दरामद से ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे कि हम इस पे जो है वो काबू पा सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगी वैक्सीन की तैयारी के हवाले से भी, क्योंकि आप काफी रिसर्च भी करते रहते हैं, और अगर बात करें हम पंजाब की तो आपने बड़ा काम किया है TB कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर। TB एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम पहले ये सोचते थे कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन बाद में हमने देखा कि इसी हवाले से प्रोग्राम भी शुरू हुआ और इसके बाद लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में सेहतयाब भी हुए। तो ऐसा कुछ होता हुआ हम देखेंगे आइंदा आने वाले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, कुछ दिनों में कि इस वायरस को लेकर भी कुछ ऐसी रिसर्च हमारे सामने आए, कोई ऐसी वैक्सीन हमारे पास आए, कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त हो जाए? इमरान, देखिए, अफवाह इसमें यह है कि जितनी भी आउटब्रेक आज तक हुई है वायरसेस की, और इस तरह की जो फ्लू वायरसेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आफ्टर अ ईयर और 2 वो उनके अंदर इतनी म्यूटेशन हो जाती हैं कि वो फिर उसकी जो स्ट्रेन है वो चेंज हो जाती हैं। तो वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती अभी तक। ये मतलब क्योंकि ये एक नया वायरस था और इसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बड़ी एक डिफरेंट थी, और जिस तरह से एग्रेसिवली इसने लोगों पे अटैक किया है, तो इसमें WHO का भी स्टांस जो है वो रेगुलरली जो है वो चेंज होता रहा है। इसकी प्रिवेंशन के हवाले से इसकी SOPs जो है वो चेंज होती रही हैं, मास्क का इस्तेमाल किसको करना है किसको नहीं करना। तो इसलिए अभी इसके बारे में प्रीमेच्योर, बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर है कि इसकी वैक्सीन के हवाले से बात की जाए। और बीइंग ए हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट, आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा मिरेकल्स वैक्सीन की सूरत में होने वाले हैं, बिकॉज अभी तो ये चल रहा है बहुत सारे ममालिक में इसकी सेकंड वेव जो है वो आ रही है। US में केसेस जो है वो पहले की जिस पर डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100,000 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी हम अब वी आर फियरिंग के जिस तरह से जो
अभी ईद उल अजहा होगा, दोबारा से लोग जो है वो जानवरों को लेके आएंगे, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसमें क्या पॉलिसीज भी अडॉप्ट करती है। तो इसमें अभी जो दुनिया है वो इसकी जो बेसिक इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी सर्वेलेंस है, इसकी जो प्रिवेंशन है, उसी पे अभी काम चल रहा है। वैक्सीन के बारे में आई बिलीव इट्स लिटिल टू अर्ली। सही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कोविड पेशेंट्स के हवाले से, या वो लोग जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। उमूमन देखने में आया है कि उन लोगों से हम सबका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उनकी रिकवरी के लिए हम सबका ताउन उनके लिए कितना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए, मेंटली जो है वो पेशेंट को बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और उनको एक जो सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, तो पेशेंट को भी जो है वो इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि उसका वो इंटरमेलिंग जो है लोगों के साथ वो पहले की तरह नहीं हो सकती। यू नीड टू कीप अ डिस्टेंस, और अगर वो घर पे क्वारंटीन किए हुए हैं तो घर वालों के साथ डिस्टेंस किस तरह से रखना है। और ये है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कमरे में हैं या फिर 6 फीट से ज्यादा 2 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो उससे बंदा इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों तरफ से आपको एक जो सोशल सपोर्ट पेशेंट को चाहिए होती है, या जो हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में हमारे पास पेशेंट आते हैं, जिस तरह की जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अडॉप्ट पहनने के बाद जो हमने उसको सपोर्ट देनी होती है बड़ी जरूरी होती है। और पेशेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जो है वो थोड़ा सा मजबूत रखा जाए सारे साइकोलॉजिकली। ठीक है जी। डॉक्टर इमरान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। साइकोलॉजी के लिए क्या किया जाना चाहिए मरीजों के साथ, पेशेंट्स के साथ, और रिसर्च क्या हो रही है दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर, उस पर भी आपसे बात हुई, फिर फैसलाबाद की सूरत हाल भी आपसे जानने को मिल गई। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा, यहाँ हमने पाकिस्तान की बात की है, अब हम बात करेंगे कि कोरोना के दुनिया भर में क्या असरात हैं और अब तक कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान कितना हुआ है। और अमेरिका की हम बात करेंगे। अमेरिका सहरी फहरिस्त है जहां अब तक सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। और आज मैं बयान देख रहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और उनकी जानिब से एक बार फिर चाइना पर इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए एक बार फिर ये बात की है कि ये चाइना की जानिब से ये तमाम तर ये कोशिश की गई है, लैब के अंदर बनाया गया, फिर उसको अमेरिका पहुंचाया गया, फिर वहां से यूरोप पहुंचा, और पता नहीं क्या क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बातों को अमेरिका के अंदर ही लोग संजीदा नहीं लेते, तो फिर अमेरिका के बाहर किस तरह संजीदा ले सकते हैं जब वो इस तरह की बातें कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल जिनका सर पैर नहीं है कोई भी। बहरहाल जी, यहाँ ये ऐसी जो तनकीद है ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये तनकीद अमेरिका के अंदर उनके ऊपर की जा रही है। वहाँ जो माहिरीन मौजूद हैं वो भी ये बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए हैं, बल्कि सारी तवज्जो जो उनकी होनी चाहिए वो रिलीफ की कामों पर होनी चाहिए जो अमेरिका के अंदर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अमेरिका की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहाँ जानी नुकसान भी अली हम बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर से बताया जाता है कि 1,30,798 से ज्यादा उन लोगों की तादाद हो चुकी है जिन्होंने अपनी जान जो है गंवाई है। और अगर मरीजों की बात करें तो वो 27,80,000 यानी अब 28 लाख के करीब अमेरिका के अंदर सिर्फ वो लोग होने वाले हैं, उनकी तादाद होने जा रही है जो इस मरज से मुतासिर हुए हैं, इसमें मुब्तला हैं कोविड-19 में। तो उनका इलाज कैसे होना चाहिए, सहूलतें क्या होनी चाहिए, मईशत को कैसे संभाला देना है, डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो इस पर होनी चाहिए। लेकिन जी अभी वो बयानबाजी में लगे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अमेरिका के अंदर अल्लाह करे कि सूरत हाल समझ जाए, न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर, और खासतौर पर पाकिस्तान में भी हम अपने लोगों से ही कहेंगे SOPs पर अमल कीजिए और तभी इससे बचाव मुमकिन है। बहरहाल जी, इसी नोट के साथ, इसी मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल शाम ठीक 6 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी न्यूज़ एट 6 में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
منظرنامہ ہے. منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں. کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہو ساتھی تو آج حریف. کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر. ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے. بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. سلطان علاؤدین اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل ہے بندوق. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی. تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر ارطغرل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو. مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا. اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا. قرطوغلو اور اس کی حواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور قندوقدو کو سردار بنانا چاہتے ہیں. تمہیں اور کس پر شک ہے؟ قرطوغلو. طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا انہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ، ان کو کیا کیا؟ کس نے مارا؟ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و ستم تمام حدیں پار کر گیا ہے. اس معصوم نواسے کی آنکھوں کے سامنے اس کا بزرگ نانا اس کو گاڑی سے اتارا گیا اور اس سفاک بھارتی افواج نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا. ہم لے کے جا رہے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی تو انہوں نے ہم نے واپس CRP نے فائرنگ کی، اس کو مارا. یہ کپڑے کہاں سے جا رہے تھے تو سویرے 6 بجے نکلے گھر سے، تو وہاں جب یہ انکاؤنٹر ہوا تو اس کو باہر گاڑی سے اتارا اور اس کے بعد اس کو فائر کیا. بچے کے سامنے اس کے نانا کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آج نازی بھی جو ہے نا وہ بھی شرم محسوس کر رہے ہوں گے. جب دفن کرو گے آزادی، جب دفن کرو گے آزادی، میرے قبر سے کہنا آزادی. صنعتی مالکان متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بایو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں.
थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं। मुलाजमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मुलाजमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए ज़राए मुदरस में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें।